Hello everyone. Today's topic is arguments for the existence of God. ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्क. And there are mainly four arguments. Today we will discuss about two: the cosmological argument and the teleological argument. It is known uh, also as theistic argument or proof have been central to philosophical and theological debates for the century. These arguments aim to provide rational and logical reasons to support the existence of a divine being. So here we will examine some of the main argument for the existence of the God and explore also criticism raised against them. So this is a table where I'll explain the main argument और उनके अंदर भी कुछ सब डिवीजन हैं या सब आर्ग्यूमेंट हैं. जैसे कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी भी कई लोग इंक्लूड करते हैं. द टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर आ जाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी. Then the ontological argument, model version of ontological argument also will discuss. The moral argument में ये दो फॉर्म हैं, डिवाइन कमांड थ्योरी एंड मॉरल रियलिज्म. सो क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म भी करना है तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक हो जाता है मर्ज होके, तो हम इसे 3 पार्ट में करेंगे. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. मतलब इसकी 3 वीडियो अपलोड होंगी और आज हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे. So, argument for the existence of God, cosmological argument. The cosmological argument is one of the most well-known and historical significant argument for the existence of God. It is based on the idea that existence of the universe demands an explanation. ये cosmological argument जो है वो ये कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो एक एक्सप्लेनेशन चाहता है, वो एक एक्सप्लेनेशन की मांग करता है. अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कॉज क्या है उसका, है ना. और वो जो एक्सप्लेनेशन है, दैट एक्सप्लेनेशन मस्ट बी नेसेसरी अनकॉज्ड एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट बीइंग which is traditionally identified as God. So this is a cosmological argument that the existence of universe demands an explanation and explanation must be necessary, uncaused and self-existent being which is traditionally identified as God. ये माना जाता है कि वो जो अनकॉज्ड और सेल्फ एग्जिस्टेंट बीइंग है वो कौन है, वो गॉड है. सो द आर्ग्यूमेंट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म. एवरीथिंग दैट बीइंग्स टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज. The universe began to exist, therefore the universe has a cause. ये आर्ग्यूमेंट दी हुई है, ये पहली दो प्रेमिसेस हैं और ये लास्ट का कंक्लूजन है. So the first premises is rooted the principle of causality. जो पहली premises है वो कौन से principle पर based है? Principle of causality, which state that every event has a cause. And in our empirical experience, we observe that all object and event within the universe have a cause. For example, a tree grows from a seed, a building is constructed by builders, and so on. So the cause of universe must be something transcendent and uncaused, which may proponent identify as God. और यूनिवर्स का जो कॉज है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसेंडेंट एंड अनकॉज, यानी उसका कोई कॉज नहीं होना चाहिए. सो द कॉज इज टिपिकली कैरेक्टराइज एज टाइमलेस, स्पेसलेस एंड इमटेरियल एज इट एग्जिस्ट बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल यूनिवर्स. टाइमलेस, स्पेसलेस एंड इमटेरियल, ताकि हम उसके कॉज की बात ना करें. So proponent of the cosmological argument may appeal to the principle of sufficient reason, which posits that everything must have an explanation or reason for its existence. तो वो कहते हैं कि हर जो भी चीज़ अस्तित्ववान है, अस्तित्व में है, जिस भी चीज़ की सत्ता है, उसकी एक व्याख्या है, उसका एक कारण है ना.
और वो कारण क्या है, पर्याप्त कारण होना चाहिए उसका। यानी ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेरी रीज़न की बात करें या फिर हम चेंजेबल रीज़न की बात करें, है ना। एक ऐसा जो नेसेसरी हो, जो ट्रांसेंडेंट हो, अनकॉज्ड हो। ये है कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सो द proponent argue that the existence of universe require an explanation and explanation must be necessary and uncaused. Now criticism. फर्स्ट वन इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। जब हम ये आर्ग्यूमेंट देखते हैं तो आप इस आर्ग्यूमेंट में फैलेसी पाएंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन। अगर आपने लॉजिक के स्टूडेंट है या आपने लॉजिक पढ़ा है, उसमें से आपने इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ी है, तो उसमें से एक फैलेसी है द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। And one of the main criticism against cosmological argument is fallacy of composition. This fallacy occur when one assume that what is true of the parts must be true of the whole. ये fallacy क्या है, ये तब बनती है जब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो चीज़ पार्ट्स में अप्लाई हो रही है वो होल में भी होगी, ऐसा हम मानते हैं। So, in the case of cosmological argument, proponent infer that because everything within the universe has a cause, so universe as a whole must have a cause. तो जो इस तर्क को मानते हो कहते हैं क्योंकि इस यूनिवर्स में हर किसी चीज़ का अस्तित्व जो है वो कॉज, किसी ना किसी कॉज पर डिपेंडेंट है, इसलिए इस पूरे यूनिवर्स का भी एक कॉज है। Critique argue that this inference may not be valid as the properties and principles that apply to objects within the universe may not necessarily apply to the universe as a whole. तो क्रिटिक यही कहते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है वो पूरे यूनिवर्स में भी हो। So the fallacy of composition challenge the transition from causality within the universe to causality for the universe itself. Second is infinite regress and the first cause. The cosmological argument often raise the question of the ultimate cause or the origin of first cause. If everything has a cause, then what caused the first cause? वो कहते हैं कि आप ही कहते हैं कि हर चीज़ का कॉज है, तो कहते हैं कि अगर हर चीज़ का कॉज है तो फिर फर्स्ट कॉज का कॉज क्या है? ये जो आप गॉड बता रहे हैं अनकॉज्ड है, इसका कॉज क्या है ना। ये इनफाइनाइट रिग्रेस है क्योंकि कॉज की चेन खत्म ही नहीं होगी ऐसे तो। सो प्रोपोनेंट में असर्ट दैट फर्स्ट कॉज इज अनकॉज्ड। जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉज है वो क्या है, अनकॉज्ड है, उसका कोई कारण नहीं है। बट दिस रिस्पॉन्स इनवाइट्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ फर्स्ट कॉज मस्ट बी अ नेसेसरी बीइंग rather than in infinite regress of cause। लेकिन ऐसा हम अगर आप कहते हैं अनकॉज है तो फिर बाकी चीज़ें भी तो अनकॉज हो सकती हैं, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि उनका कोई ना कोई कॉज होना चाहिए, या जो फर्स्ट कॉज है वो नेसेसरी होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके कॉज की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? So the critique argue that if proponent can possess an uncaused necessary being as an exception, then they should allow for the possibility of infinite regress of contingent cause as an alternative explanation। अगर वो एक जगह अनकॉज की बात कर रहे हैं तो उन्हें दूसरी जगह भी अनकॉज की बात करना चाहिए। तो इस तरह से वो अपनी ही थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नाउ थर्ड इज द नेचर ऑफ कॉजेशन। The concept of causation is complex and has been subject of philosophical inquiry for the century. The cosmological argument assumes a straightforward understanding of causation, but critics argue that causation is not necessarily a simple relationship of X cause Y. वो कहते हैं कि ये जो causation का nature है ये बहुत complex है, बहुत जटिल है। आप बस ऐसा ही नहीं कह सकते कि y का कॉज x है या x का कॉज y है। क्रिटिक रेज क्वेश्चन इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन मे नॉट अप्लाई टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। वो कहते हैं कि ऐसा ये जो कॉजेशन का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्स पे अप्लाई होता नहीं है। कॉजेशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन एंड observation of event within the universe and passage of time
तो कॉजेशन जो क्या है वो ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है, का सब्जेक्ट है, यानी जब जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते जाते हैं हमें कॉजेशन के बारे में पता चलते जाता है. अप्लाइंग कॉजेशन बियॉन्ड द यूनिवर्स रेजेस क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ कॉजेलिटी आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस एंड टाइम. अगर आप यूनिवर्स से बाहर कॉजेशन की थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं कि यूनिवर्स का कॉज क्या है, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, और कॉजेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है. क्रिटिक आर्ग्यू दैट इवन इफ वी एक्सेप्ट द फर्स्ट टू प्रेमिसेस, अगर हम पहली दो प्रेमिसेस कर भी लें कि हर चीज़ का कॉज होता है, जितनी भी एग्जिस्टेंट थिंग है उनका कॉज होता है, और यूनिवर्स भी एग्जिस्टेंट है इसलिए उसका भी कॉज है, तो फर्स्ट दो प्रेमिसेस, so the argument does not necessarily lead to the existence of personal intelligent and conscious deity. अगर हम ये मान भी लें कि हर चीज़ का कॉज होता है, तो भी ये ज़रूरी नहीं कि इस यूनिवर्स का जो कॉज है वो पर्सनल इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस बीइंग है. इट कुड पोटेंशियली लीड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट और इम्पर्सनल कॉज और अ मल्टीवर्सल सिनेरियो विथ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. हो सकता है कि उसका जो कॉज है वो इम्पर्सनल हो, यानी वो ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट ही ना हो, या फिर वो यूनिवर्स जो है वो नेचुरलिस्टिक वे में ग्रो कर रहा है या वो क्रिएट हुआ है. तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि पहली दो प्रेमिसेस सही भी हो तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो थी क्रिटिसिज्म. अब मैंने जैसा कि कहा कि कॉस्मोलॉजिकल के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट है, contingency, the argument from contingency. The argument from contingency is another form of cosmological argument which was famously formulated by philosopher like Thomas Aquinas. उन्होंने दिया था, and it is based on the idea that contingent beings which depend on something else for their existence cannot account for their own existence. और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या, कि ये जो कंटिंजेंट बीइंग है, ठीक है, वो क्या है, वो उनका एग्जिस्टेंस किसी पर डिपेंडेंट है, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आए. एवरीथिंग वी एनकाउंटर इन एम्पिरिकल वर्ल्ड इज कॉन्टिजेंट. वो कहते हैं इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, इस अनुभविक दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कंटिंजेंट है. एंड कंटिंजेंट बीइंग कैन नॉट अकाउंट फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड मस्ट बी कॉज्ड बाय समथिंग एल्स. और कंटिंजेंट बीइंग का एग्जिस्टेंस सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्री इज कंटिंजेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सॉइल, वाटर एंड सनलाइट फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, है ना, जैसे कि ट्री होता है. देयरफॉर देयर मस्ट बी अ नेसेसरी बीइंग. इसलिए इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए कॉज होना चाहिए, एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए. अ बीइंग दैट एग्जिस्ट बाय नेचर, by its very nature and does not depend on anything else for its existence, which is traditionally identified as God. ये है contingent argument. अब इसकी criticism देखते हैं. इसकी दो criticism है. Critic argue the concept of contingency is based on our experience within the physical universe. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि causation जो है observation का है, तो वो कहते हैं कि कंटिंजेंसी भी हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. वी हैव नो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ एंटिटीज आउटसाइड द यूनिवर्स एंड इट इज नॉट क्लियर वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंसी अप्लाई टू अ ट्रांसेंडेंट रियल्म इफ वन एग्जिस्ट. वो कहते हैं कि पहली बात तो ये हमारे एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट है. अगर आप अनकॉज्ड को की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर हो जाएगा. तो क्या उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? एडिशनली, प्रोपोनेंट ऑफ इटर्नल यूनिवर्स मॉडल, इटर्नल यूनिवर्स मॉडल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूनिवर्स इटर्नल है यानी अमर है. सजेस्ट दैट द यूनिवर्स मे बी अ नेसेसरी बीइंग एंड देयरफॉर वुड नॉट रिक्वायर अ कॉज, कि यूनिवर्स को कॉज की जरूरत नहीं है. हाउएवर, एज प्रीवियसली मेंशन्ड, eternal universe model face their own challenges and concept of necessary being may require further examination. Now, second argument is teleological argument. The teleological argument, also known as argument from design, यानी कि इस संसार को डिजाइन किसने किया,
जो इतना परफेक्ट है, सब कुछ अपने आप चलता है. सो इज वन ऑफ द क्लासिकल आर्गुमेंट. दिस teleological argument is a classical argument for the existence of God, and it is based on the observation of order, complicity, and purpose in the natural world, and posits that these features are best explained by the existence of an intelligent designer, which is traditionally identified as God. वो कहते हैं कि इस वर्ड का जो डिजाइनर है वो कौन है, वो गॉड है. Argument focus on the precise and delicate balance of physical constant and condition in the universe that allow life to exist. Proponents argue that likelihood of such fine-tuning suggesting that an intelligent designer is responsible for setting these parameters. ये आप कई जगह पढ़ेंगे तो आपको ना इस नाम से एक आर्ग्यूमेंट मिल सकता है, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट. उसके अंदर भी हम यही पढ़ते हैं कि इस यूनिवर्स में इतनी फाइन ट्यूनिंग है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिनके बीच म्यूचुअली कनेक्शन ना हो, जिनके बीच एक रिलेशनशिप ना हो, और वो बड़े स्मूथली चल रहा है. कब कौन सा वेदर आना है, कब कितने टाइम तक रहना है ना. नेचर में, इन्वायरमेंट में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप डेवलप होती हैं, अपने आप डिस्ट्रॉय होती हैं, है ना. तो ये जो फाइन ट्यूनिंग है इस पूरे यूनिवर्स में, वो किसकी वजह से है, उसका डिजाइनर कौन है, वो सब पैरामीटर्स किसने सेट किए. सो अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, वो कौन है, गॉड है. नाउ क्रिटिसिज्म. फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. Critique maintain that complexity and order observed in the natural world can be explained by natural process such as evolution and self-organizing system. वो कहते हैं, क्रिटिक कहते हैं कि ये जो वर्ड में आप कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, एक ऑर्डर देखते हैं, एक डिसिप्लिन जो मेंटेन है, वो किसकी वजह से, वो नेचुरल प्रोसेस भी तो हो सकती है. जैसे कि इवोल्यूशन होता है, अपने आप चीज़ें विकसित होती हैं ना, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होते हैं, उन्हें कोई लीड नहीं करता है. सो दे आर्ग्यू दैट अपरेंट डिजाइन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी द रिजल्ट of non-intentional mechanism rather than the work of an intelligent designer. वो कहते हैं कि ये जो आपको लग रहा है कि कोई डिज़ाइनर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, उसको किसी ने डिज़ाइन किया है, नहीं. वो कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं कि उसका कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर हो. Additionally, critics argue that universe fine-tuning may be a consequence of unknown physical law or principle that govern the universe and structure rather than the result of intentional design. वो कहते हैं कि ये जो फाइन ट्यूनिंग है, ये मे बी किसी अननोन फिजिकल लॉ, जो हमें अभी तक नहीं पता है, ये उसका परिणाम हो, ये ना कि किसी ने इंटेंशनली वो डिज़ाइन ही ऐसा किया है. ये है इसके बाद है इनफाइनाइट रिग्रेस. ये हमने पहले में भी पढ़ा, यहाँ पे भी आ रहा है. The teleological argument faced the challenge of an infinite regress of designers. If complexity require a designer itself would require a designer leading to an infinite chain of designers. वो कहते हैं कि अगर ये जो वर्ड में कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, इसका कोई डिज़ाइनर है, तो जो डिज़ाइनर है उसको भी किसी ने डिज़ाइन किया होगा, है ना. उसको मतलब उसका भी कोई कॉज होगा, उसका भी कोई कॉज होगा. तो इस तरह से सो प्रोपोनेंट में assert that designer is a necessary and uncaused, but this response may face its own challenge such as the nature of necessity and the origin of necessary being. लेकिन इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. नाउ द प्रॉब्लम ऑफ ईविल मेनली मॉरल आर्ग्यूमेंट की क्रिटिसिज्म है. मैं आपको बताऊं, उसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कहीं कहीं वो इधर भी इंट्रोड्यूस हो सकती है. So this argument does not directly, the teleological argument does not directly address the problem of evil, which question the existence of an all-power, all-knowing and benevolent God in the face of presence of evil and suffering in the world. Critics argue that existence of natural evils such as disease,
natural disasters, challenge the idea of benevolent designer. वो कहते हैं कि एक डिज़ाइनर जिसने इतना परफेक्ट डिज़ाइन किया है, तो उसमें उस ऐसे वर्ड में डिसीज़ क्यों है, नेचुरल डिज़ास्टर क्यों है ना? अगर उसने सब कुछ इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो ईवल की प्रॉब्लम है, ये तो एक बहुत शॉर्ट में मैंने आपको क्रिटिसिज्म दी है। इसके पहले भी हम वीडियो पढ़ चुके हैं द प्रॉब्लम ऑफ ईवल, तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें भी हम यही बात करते हैं कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो ईवल क्यों एग्जिस्ट करती है, ईवल नहीं करनी चाहिए। तो डिटेल में जाना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। जस्ट बिकॉज critique content that the argument may lead to an argument from ignorance. Just because we don't currently have a naturalistic explanation for the fine tuning does not mean that one does not exist. वो कहते हैं कि अगर हमें नहीं पता कि ये जो फाइन ट्यूनिंग है नेचर में उसका कुछ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, अगर इफ वी आर इग्नोर अबाउट दैट, हमें पता है नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बाहर हैं, जिन्हें हम जिनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, जिनको अभी तक नहीं खोजा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। So this theory of science is replete with example of phenomena once considered evidence of design or divine intervention that were later explained by natural cause. क्योंकि ऐसे समय समय पे ऐसी कई इवेंट्स हुए, ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो डिवाइन थे, बट बाद में साइंस ने उनको डिस्कवर किया और उनकी सही थ्योरी बताई। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है फ्यूचर में हमें इस यूनिवर्स का भी कोई नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन मिल जाए। फर्दर द टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट डज नॉट एस्टैब्लिश द नेचर और एट्रीब्यूट ऑफ डिज़ाइनर। जिस डिज़ाइनर की हम बात कर रहे हैं, तो टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में ये तो नहीं बताया गया कि उसका नेचर कैसा है, वो जो डिज़ाइनर है उसका नेचर कैसा है, एट्रीब्यूट क्या है ना। अब ये तो नहीं है ना जिसको हम ऑब्जर्व ही ना कर पाए उसे आप डिज़ाइनर की बात कह दो, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है। द आर्ग्यूमेंट may suggest a cause of fine tuning, but it does not necessarily prove the existence of personal, omniscient and omnipotent deity. तो वो कहता है कि ठीक है, अगर हम फाइन ट्यूनिंग का कॉज मान लो, ये आर्ग्यूमेंट जो है सही कह रहे हैं कि एक फाइन ट्यूनिंग है, उसका कोई कॉज है, उसका कोई डिज़ाइनर है, बट तब भी ये प्रूफ नहीं होता कि वो जो डिज़ाइनर है वो पर्सनल, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट है, क्योंकि आप उस डिज़ाइनर का नेचर एंड एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी का एक पार्ट है द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, हम वहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।